Hello everyone, my name is Anurag Singh. Welcome to Pahuja Law Academy, and this is a demo lecture for the Code of Civil Procedure. Now, before we go to the demo lecture, one thing you should understand is the importance of CPC, right? Now, for the importance of CPC, देखो, laws can be mainly divided into two categories. The first is criminal, which will consist of subjects like IPC and CRPC, right? These are the only two subjects we have to study under criminal law. For almost every other law that we study, that will fall under the civil category. It can be contract, or it can be the Transfer of Property Act, or it can be Hindu laws, or it can be Muslim laws, or it can be company law, it can be labor law, it can be the Sale of Goods Act, it can be partnership, or it can be any other law, almost any other law that we study. It can be tort, registration, limitation. All of those acts fall under the civil category, right? So it is not an exaggeration to say that 90% of the laws, they fall under the civil category, right? और ये याद रखना कि 90% laws को regulate करने के लिए there is only one code, which is the CPC, right? So immediately you can see from an understanding point of view, the CPC becomes very important for you to understand. And so देखो 90% laws को एक CPC regulate करती है, तो इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि CPC को समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट यू मस्ट स्टडी, ठीक है? नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ द सब्जेक्ट बट ऑल्सो फॉर द सेक ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, बिकॉज if you understand CPC, these subjects will become very easy for you to understand, okay? Comparatively easy, not very easy. Now, that was from an understanding point of view. From an examination point of view, देखो, in the prelims exam, since CPC is a major subject, you will get somewhere between 15 to 20 questions from CPC. Now, in the mains exam, देखो, mains में there is a separate paper on procedural law, right? And in this paper you will be getting questions from CPC, CRPC and the Indian Evidence Act, right? So you can see that 1/3 weightage is still given to the CPC in the mains exam, right? So not only this, in some mains exam you will have to write the plaint, you will have to write the written statement, and in some exams even the judgment writing is going to be there, right? So plaint, you will only be able to write the plaint when you are thorough with the CPC. Same is the case with written statement and same is the case with judgment writing, ठीक है? सबके लिए you must be thorough with the CPC. So you can see from an examination point of view also CPC is a very important subject, ठीक है? चाहे prelims के point of view से देखो, mains के point of view से, या फिर understanding point of view से देखो, all of this is from the understanding point of view. And CPC is a very important subject for you to study, ठीक है? अब देखो, इस CPC की इंपॉर्टेंस समझना इजी होता है, CPC समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी. इफ यू डोंट नो द प्रॉपर वे टू स्टडी CPC, इट कैन बी रियली कंफ्यूजिंग, राइट? देखो, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू टू अंडरस्टैंड CPC इज टू डिवाइड CPC इनटू टू पार्ट्स, ठीक है? कौन कौन से? द फर्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी द सेक्शंस and the other part is going to be the orders, right? Sections and orders. Now, what are sections and what are orders? Sections only give you the general principles or the broad framework, They never go into details. यहाँ पर section में you are not going to find any details. यहाँ पर नहीं मिलेंगे आपको. Orders, on the other hand, these are the real elaboration of proceedings, right? And this is actually the place where you are going to get your details, ठीक है? So first thing, thoroughly remember that CPC को हम लोग क्या करना पड़ेगा? दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, sections में और orders में. Sections give you the basic principles of the framework without the details. For details, you will always need the orders, ठीक है? Now, one more thing, देखो, not every section but almost every important section has a corresponding order.
almost every important section will have a corresponding order. Of course, not all, like res judicata does not have a corresponding order, but still, almost every section will have a corresponding order. So, how do you study CPC? You study the section and then you directly jump to the order. ठीक है? कभी भी CPC को don't try to study it section wise or order wise. ऐसा मत करना. ठीक है? How do you study CPC? You study the section and then directly jump to the corresponding order. ठीक है? So section will give you the framework or the principles. For the details, you need to go to the order, right? Now, there are many examples in CPC where a section has a corresponding order. I am saying this again, not every section has a corresponding order. Even not every important section has a corresponding order. But almost all the important ones will have a corresponding order. ठीक है? So, some examples जहाँ पर की section का एक corresponding order है, like institution of suits. So, for institution of suits, what do we need? We need section 26 and order 4. राइट? सो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स, सो वी नीड सेक्शन 26 एंड वी नीड ऑर्डर 4. ठीक है? 26 के बाद 27 पे नहीं जाएंगे बिकॉज 27 इज अ कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक, क्योंकि सेक्शन 27 इज अबाउट समन्स. सो समन्स के लिए वी नीड सेक्शन 27 एंड ऑर्डर 5. राइट? देखो कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक हो जाता है. 26 से 27 कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक है. राइट? सो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन पढ़ेंगे एंड देन वी विल गो टू द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर. अगेन देखो जैसे जजमेंट. सो फॉर जजमेंट वी नीड सेक्शन 33 एंड द ऑर्डर इज ऑर्डर 20. अगेन सेम थिंग, सेक्शन के बाद हम लोग सीधा कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर पे चले जाएंगे. जजमेंट. अब इसके बाद से मान लो कॉस्ट्स. कॉस्ट्स के लिए हम लोग को चाहिए सेक्शन 35 एंड 35A and the order is order 20A. Right? Same thing again. अगर मान लो हम लोग एग्जीक्यूशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, so for execution we need sections 36 to 74 and the order is order 21. Right? Again sections पढ़ेंगे और उसके बाद corresponding order पे चले जाएंगे. ठीक है? Again देखो commissions. कमीशंस पढ़ने के लिए हम लोग को चाहिए सेक्शन 75 एंड द ऑर्डर इज ऑर्डर 26. सेक्शन ऑर्डर का कॉरेस्पॉन्डेंस. राइट? ऐसे ही अगर मान लो हम लोगों को अपील्स पढ़ना हो, सो फॉर अपील्स वी नीड सेक्शंस 96 to 100, दिस इज द फर्स्ट अपील्स, एंड ऑर्डर 41. राइट? अगर मान लो हम लोगों को रेफरेंस पढ़ना हो, सो फॉर रेफरेंस वी नीड section 113 and the order is order 46. ठीक है? अगर मान लो हम लोग को रिव्यू पढ़ना हो, so for review we need section 114 and the order is order 47. So I can give you many more examples, but these are just few examples to demonstrate this point कि देखो section का एक corresponding order होता है. Let's take one more, interpleader suits. इंटरप्लीडर सूट्स. ठीक है? सॉरी, दिस इज सेक्शन 88 एंड ऑर्डर 35. राइट? सो अगेन क्या होगा, इंटरप्लीडर सूट्स के लिए वी विल स्टडी सेक्शन 88 एंड गो टू ऑर्डर 35. अनदर एग्जांपल जहां पर कि सेक्शन का एक कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर होता है. सो यू स्टडी द सेक्शन एंड देन डायरेक्टली जंप टू द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर. ठीक है? सो व्हाट इट डज, इट मेंटेन्स अ सिंक कि आपका टॉपिक जो है, देखो इट्स नॉट लाइक अगर आप सेक्शन वाइज पढ़ोगे तो आपको सीपीसी समझ नहीं आएगा. नहीं, यू विल अंडरस्टैंड सीपीसी, बट सीपीसी विल मेक मोर सेंस अगर आप ऐसे करोगे. तो देखो अगर हम लोग सेक्शन वाइज करते हैं और ऐसे नहीं करते कॉरेस्पॉन्डिंग करके तो क्या होगा. देखो ध्यान देना, सेक्शन 88 मान लो हम लोग पढ़ते आते हैं, देयर आर 158 सेक्शंस, तो पढ़ते आए और वी कम टू सेक्शन 158. ठीक है? 158 के बाद वी स्टार्ट विद द ऑर्डर्स. अब फिर हम लोग ऑर्डर 1 2 3 4 ऐसे करते करते जब तक हम लोग ऑर्डर 35 पे आएंगे, वी विल ऑलरेडी फॉरगेट व्हाट वी हैड स्टडीड अंडर सेक्शन 88. ठीक है?
एंड दैट इज वाई इन दोनों को हमेशा साथ में पढ़ना, ठीक है, बिकॉज द ब्रेक, अगर आप वो ब्रेक कर दोगे ना कि ऐसे कर दोगे, सो यहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल मिस कि हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था, ठीक है. दैट इज वाई दे शुड बी स्टडीड टुगेदर. Section will give you the framework or the principles. The orders will contain the details. ठीक है. Now this is a very important thing and a very useful thing that you should do. But remember one thing. This does not mean that you can pick up any random section and go to the corresponding order. No, that is not the way CPC should be studied. Because देखो, let's say we start CPC now. अभी start करते हैं हम लोग CPC. और हम लोग अपील्स का टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, राइट. लेट्स से अपील्स में, राइट, अपील्स क्योंकि अपील्स का सेक्शन ये है और यहां पर ऑर्डर है ये. सो वी कैन नॉट स्टार्ट विद अपील्स. सीपीसी स्टार्ट करोगे और ऐसा नहीं कि आप अपील से सीधा और उसके ऑर्डर पे चले जाओगे, नहीं. यू हैव टू अरेंज द होल ऑफ सीपीसी ऑन अ बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, और वो एक बेसिक फ्रेमवर्क होगा और उस बेसिक फ्रेमवर्क का बेसिस होता है एक क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज हाउ डज एन ऑर्डिनरी सूट रन. हाउ डज एन ऑर्डिनरी सूट रन, ठीक है. सो इसमें हम लोगों को देखना पड़ेगा कि एक ऑर्डिनरी सूट जो है, जो एक्चुअल प्रैक्टिस में कोर्ट में कैसे चलता है, ठीक है. दैट ऑर्डिनरी सूट स्टार्ट्स विद द फाइलिंग ऑफ द प्लेंट, ठीक है. The plaintiff comes and he files the plaint. That is how you start a suit, right? The filing of the plaint along with the affidavit, that is known as the institution of suit under section 26, right? Now, जब plaint file हो गई है, when the suit has been instituted, the next step is summons, ठीक है. तब क्या होता है, summons जाते हैं डिफेंडेंट के ऊपर. plaint file हो गई है, now the defendant will be delivered with the summons. So summons का पर्पस क्या है? The fulfillment of principles of natural justice. You know, the other side must be given an opportunity of being heard. And how do you ensure that? By delivering a summons, ठीक है. और याद रखना, ऑर्डर 5 रूल 2 ऑल्सो सेज कि समन्स के साथ क्या जाती है, कॉपी ऑफ प्लेंट जाती है, ठीक है. सो यू कैनॉट गिव समन्स बिफोर देयर इज अ प्लेंट, राइट. ऑर्डर 5 रूल 2, आई एम स्पेसिफिकली सेइंग इफ यू वांट टू चेक इट, go and check it, कि समन्स के साथ हमेशा एक कॉपी ऑफ प्लेंट जाती है. सो अनलेस देयर इज अ प्लेंट देयर वोंट बी अ समन्स, राइट. इसीलिए हम लोग पहले प्लेंट फाइल करते हैं, फिर समन्स. नाउ when the summons have been delivered, then the defendant appears and files his written statement, right. So now the defendant has appeared and filed his written statement, right. अब यहां पर देखो, दोनों पार्टीज के रिटन सबमिशंस हो चुके हैं. प्लेंटिफ ने अपनी फाइल कर दी और डिफेंडेंट ने अपनी फाइल कर दी. नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज देयर इज द अपीयरेंस एंड एग्जामिनेशन, ठीक है. एंड दिस इज एक्चुअली एन ओरल एग्जामिनेशन अंडर ऑर्डर 10 रूल 1. यू विल सी दिस प्रोविजन. सो ऑर्डर 9 एंड ऑर्डर 10 जो है अपीयरेंस एंड एग्जामिनेशन दोनों साथ में चलता है हमेशा. देखो, after the parties, both the parties have given their written submissions, what the court does, court asks both the parties to appear before it and then examines them orally, ठीक है. वहां पर उनका oral examination होता है. The purpose of the oral examination is twofold. One, the court wants to satisfy कि इन लोगों ने जो अपने रिटर्न सबमिशंस में जो एडमिशंस किए हैं या डिनायल्स किए हैं वो प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है. या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने इम्प्रॉपरली एडमिट कर लिया था या फिर गलती से एडमिट कर लिया था या गलती से डिनाई कर दिया था, ठीक है. तो कोर्ट वांट्स टू सेटिस्फाई कि इनमें जो भी एडमिशंस या डिनायल्स हुए हैं वो प्रॉपर है या नहीं है. एंड दैट कैन ओनली बी डन बाय एन ओरल एग्जामिनेशन, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, द कोर्ट ऑल्सो वांट्स टू सी इसी स्टेज पर जब ये एग्जामिनेशन हो रहा होगा ओरल, यहीं पर कि इज द डिस्प्यूट सुटेबल फॉर सेटलमेंट आउटसाइड द कोर्ट, कि या फिर कैन द कोर्ट ऑर्डर आर्बिट्रेशन और द कैन द कोर्ट ऑर्डर कॉन्सिलिएशन या फिर मीडिएशन या जुडिशियल सेटलमेंट, इनमें से कोई भी, राइट. ये लोक अदालत को रेफर कर सकती है या नहीं, वो चीज ओरल एग्जामिनेशन पर ही होती है. वहां पर द पर्पस ऑफ दिस ओरल एग्जामिनेशन इज टू फोल्ड. वन, टू अंडरस्टैंड द रियल नेचर ऑफ डिस्प्यूट, जिसमें कि एडमिशंस डिनायल्स वो प्रॉपर्ली देखती है कोर्ट. दूसरा, कि क्या इसमें
एडीआर पॉसिबल है या नहीं, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से हम लोग कहते हैं, वो पॉसिबल है या नहीं है, राइट। सो यहां पर कोर्ट वो कर लेती है। अब जब ये सब चीजें हो जाती हैं, ध्यान देना, राइट, प्लेंट हो गया, रिटन स्टेटमेंट हो गई, और दोनों पार्टीज को बुला करके कोर्ट ने ओरल एग्जामिन भी कर लिया, ठीक है। जब ओरल एग्जामिनेशन हो चुका है, उसके बाद वी कैन से दैट द कोर्ट इज इन अ वेरी गुड पोजिशन टू अंडरस्टैंड द रियल नेचर ऑफ डिस्प्यूट, क्योंकि अब उन लोगों के रिटन सबमिशन ही नहीं, ओरली भी कोर्ट उन्हें बुला के पूछ चुकी है कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। एवरीथिंग इज बिफोर द कोर्ट एंड द कोर्ट मेक्स अ डिसीजन, क्योंकि ठीक है, इनके बीच में एक्चुअली ये प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई द नेक्स्ट स्टेप इज सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, ऑल्सो नोन एज फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, ठीक है। ऑर्डर 14 रूल 1 says this is the framing of issues. Now, after the issues have been settled or the issues have been framed, the next step is trial or the hearing. Issue settle करने के तुरंत बाद क्या होता है, trial start होता है, और the hearing of the suit commences, right? Now, the hearing of the suit चलती है, at the end of the hearing or at the end of the trial, there is the judgment followed by a decree. ठीक है, तो ट्रायल कैसे एंड होता है, बाय ए जजमेंट एंड अ डिक्री, ठीक है। नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि डिक्री पास होने पर द सूट कम्स टू एन एंड, द ट्रायल हैज कम टू एन एंड, बट ऐसा होता नहीं है, बिकॉज डिक्री पास होने के बाद देयर आर टू कोर्सेज ऑफ एक्शंस पॉसिबल, राइट। वन, द विनिंग पार्टी वुड लाइक टू गो फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, वो तुरंत चाहेगी डिक्री का इंप्लीमेंटेशन हो जाए, ठीक है। बट द लूजिंग पार्टी वुड लाइक टू गो फॉर एन अपील, दिस इज जनरली स्पीकिंग। अब देखो यहां पर क्या होगा, टू थिंग्स पॉसिबल, वन वुड बी एग्जीक्यूशन एंड द अदर वुड बी अपील, बट ही ऑल्सो हैज द ऑप्शन ऑफ गोइंग फॉर रिव्यू और रेफरेंस, सॉरी नॉट रेफरेंस, रिविजन, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द डिक्री ही कैन चूज एनी वन, राइट। अब देखो यहां पर वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि दिस इज हाउ एन ऑर्डिनरी सूट रन, दिस इज अ वेरी बेसिक टाइम लाइन ऑफ एन ऑर्डिनरी सूट, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी डिटेल्स आती है विच वी विल कवर लेटर ऑन, बट देखो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, यू हैव टू अरेंज द होल ऑफ सीपीसी like an ordinary suit runs, ठीक है। And this is the basic timeline that you must follow. Now, why is this necessary? क्यों जरूरी है? CPC के अकॉर्डिंग plaint is in order 7, summons is in order 5, and written statement is under order 8, right? अब अगर हम लोग CPC के सीक्वेंस देखें, so according to the sequence of the CPC, the summons वो पहले सर्व हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि समन्स इज इन ऑर्डर 5, उनका सीक्वेंस देखें तो वहां पर वो पहले सर्व हो जा रहे हैं, बट वी नो कि इट्स नॉट पॉसिबल, व्हाई, बिकॉज ऑर्डर 5 रूल 2 सेज द समन्स शैल बी अकम्पनीड बाय अ कॉपी ऑफ द प्लेंट, सो अनलेस देयर इज अ कॉपी ऑफ द प्लेंट देयर वोंट बी अ समन्स, राइट। सो इसीलिए सीपीसी इज नॉट अरेंज्ड इन अ वे हाउ एन ऑर्डिनरी सूट रन्स, एंड दैट इज व्हाई ये अरेंजमेंट आपको खुद करनी पड़ती है। नाउ नेक्स्ट इज अपीयरेंस एंड एग्जामिनेशन, दिस इज ऑर्डर 9 and 10, settlement of issues under order 14, and then we have the trial under order 18, then the judgment and decree under order 21, execution under order 21, appeal under order 41, review under order 47, revision, this is section 115, इसका कोई order नहीं होता, right? Now ध्यान देना, एक बार हम लोगों ने ये टाइमलाइन समझ ली है और सीपीसी को पूरे इस टाइमलाइन पे अरेंज कर दिया है, उसके बाद हम लोगों को सेक्शन ऑर्डर का कॉरेस्पॉन्डेंस याद रखना है, ठीक है। जैसे कि यहां पर समन्स में मैंने लिखा है ऑर्डर 5, बट दिस मस्ट बी सेक्शन 27 रेड विथ ऑर्डर 5, जजमेंट के लिए दिस मस्ट बी सेक्शन 33 रेड विथ ऑर्डर 20, एग्जीक्यूशन के लिए इट मस्ट बी sections 36 to 74 read with order 21, appeal के लिए it must be sections 96 to 100 read with order 41, review के लिए it must be section 114 read with order 47, right?
सो यहां पर हम लोग को ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ सेक्शन ऑर्डर का कॉरेस्पॉन्डेंस दैट इज नॉट सफिशिएंट, वी हैव टू कीप इन माइंड कि सेक्शन ऑर्डर के कॉरेस्पॉन्डेंस को आप एक लॉजिकल वे में भी अरेंज कर सको, ठीक है. सो ट्राई टू, वेन एवर यू ट्राई टू स्टडी, keep two things in mind. One would be the correspondence of the sections and the orders, and the other one is the timeline. ठीक है. अगर आपको टाइमलाइन और सेक्शन ऑर्डर का कॉरेस्पॉन्डेंस समझ में आ गया है, सीपीसी विल सीम वेरी लॉजिकल, क्योंकि लॉजिकल में कैसे आपको बढ़ना है. देखो ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं पढ़ोगे तो सीपीसी समझ नहीं आएगी, आ जाएगी, बट इट वुड नॉट मेक सेंस. कई बार सीपीसी में आपको लगेगा कि ये हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा. बट इफ यू स्टडी इट ऑन दिस टाइमलाइन, it is a very sensible way of approaching CPC. ठीक है, चलो, that is it from my side. Thank you everyone.